Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. So today's topic is data handling. Learning objectives. To make pictographs and bar graphs, to read pictographs and bar graphs. Now tune up. What is the use of pictographs? Pictographs are helpful in sorting out the data. Now let's start. Pictograph. When numerical data is represented in the form of pictures, it is known as pictorial representation or pictograph. The facts given to us are called data. Symbols are used to represent data in pictographs. Symbols may represent more than one item of data, so a key is used to represent these items. Observe the given picture graph which shows the number of students present in a class for a week. तो यहाँ पे days given है, number of students present. तो faces बनाए हैं, days बनाए हुए हैं and key क्या है कि one face represents 10 students. Now read the pictograph and answer the following questions. Number 1. If the total strength of the class is 60, then the number of students absent on Monday was 10. जब हमने total किया तो it is 10. Second, the maximum number of students took leave on Friday. सबसे ज़्यादा किस दिन ली? Friday. Third, on Monday and Wednesday an equal number of students took leave. Number 4, on Tuesday the maximum number of students were absent. Number 5, the attendance in the whole week was 210. सबको add कर दिया present को तो 210. Now practice time 16.1. Question number 1. The pictograph below shows the color of some balls and the number of students who like different colors. Observe the pictograph and color the rectangle accordingly. तो यहाँ पे number of balls given है red, blue, green and black. Colors of the ball. यहाँ पे number, colors red, blue, green and black. Now answer the following questions. A. Which color is liked by most children? सबसे ऊंचा जो बार है वो किसका है? रेड कलर. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रेड कलर. तो इसका आंसर क्या है? रेड. सो रेड कलर कितना है? रेड कलर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ हम रेड कलर को इतने बॉक्सेस को, इतने रेक्टेंगल्स को फिल कर देंगे. नाउ बी. विच कलर इज लाइक्ड बाय लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन? सबसे कम क्या है? ब्लैक. ब्लैक में कितना है? ओनली 2. तो इन दो बॉक्सेस को आप कलर करेंगे और यहाँ लिखेंगे ब्लैक. नाउ नेक्स्ट सी. विच कलर इज लाइक्ड मोर, ब्लू और ग्रीन? कौन सा ज़्यादा पसंद किया गया है? ब्लू में आपके 1 2 3 4 हैं. ब्लू में आपके 1 2 3 4 हैं और ग्रीन में 1 2 3 4 5 6 हैं. 1 2 3 4 5 6 हैं. तो कौन सा कलर ज़्यादा पसंद किया गया है ब्लू और ग्रीन में? ग्रीन. नाउ डी पार्ट. हाउ मैनी चिल्ड्रन वर आस्क्ड इन ऑल? कुल कितने बच्चों से पूछा गया? तो 8 + 4 + 6 + 2. 8 + 4 12, 12 + 6 is 18, 18 + 2 is 20. 20 स्टूडेंट्स से टोटल पूछा गया. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आपको ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज बार ग्राफ. Sometimes it becomes difficult to represent every data pictorially. We can also represent such type of data in the form of graphs and charts. One such type of data representation is the bar graph. A bar graph has horizontal or vertical columns or bars made of equal width. The length or height of a bar tells us about the number of quantity. Thus, a bar graph is a pictorial representation of data with bars of equal width drawn horizontally or vertically. A bar graph also has a scale. It shows how many are being talked about for a unit scale. A bar graph can show more than one quantity at a time by using bars of different types of colors. There are two types of bar graphs, horizontal bar graph and vertical bar graph. Now, horizontal bar graph. Example 1. The following graph shows the marks of a student in different subjects. Scale क्या given है? 1 square box is equals to 10 marks.
मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। हिंदी में कितने हैं? SST, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, और नीचे क्या गिवन है? मार्क्स। तो हमारे साइंस में कितने मार्क्स हैं? 60, इंग्लिश में आपके हैं 50, मैथ्स में आपके कितने हैं? दैट इज 80, SST में है 40 एंड हिंदी में है 70। राइट, नाउ क्वेश्चंस करते हैं। ए, इन विच सब्जेक्ट इज द मार्क्स हाईएस्ट? हाईएस्ट सबसे ज्यादा किसका बार ग्राफ का है? मैथ्स, तो आंसर है मैथ्स। बी, हाउ मैनी मार्क्स डिड द स्टूडेंट स्कोर इन हिंदी? हिंदी में कितने मार्क्स हैं? 70। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स इन इंग्लिश एंड साइंस? इंग्लिश में कितने हैं? 50 और साइंस में कितने हैं? 60, तो 60 माइनस 50 इज 10। नाउ डी पार्ट, इन विच सब्जेक्ट इज द मार्क लोवेस्ट? सबसे कम किस में है मार्क्स? SST। नाउ नेक्स्ट इज वर्टिकल बार ग्राफ। एग्जाम्पल 2, द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ अप्लायंसेस सोल्ड बाय अ शॉप इन अ मंथ। रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अप्लायंसेस गिवन है, वॉशिंग मशीन, टीवी, माइक्रोवेव ओवन, AC, टोस्टर, म्यूजिक सिस्टम, एंड नंबर ऑफ अप्लायंसेस सोल्ड, कि कितने अप्लायंसेस सोल्ड हुए हैं। तो यहाँ पे ए, विच अप्लायंस वॉज सोल्ड इन मैक्सिमम नंबर? सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा बार ग्राफ किसका है? टीवी, तो यहाँ पे आंसर हमारा टीवी। नाउ बी पार्ट, विच टू अप्लायंसेस वर सोल्ड इक्वली? इक्वल, तो इक्वल बार ग्राफ किसका है? माइक्रोवेव ओवन का और AC का, तो माइक्रोवेव ओवन एंड AC। नाउ सी पार्ट, विच अप्लायंस वॉज सोल्ड इन मिनिमम नंबर? सबसे छोटा ग्राफ किसका है आपका? वॉशिंग मशीन, तो आंसर इज वॉशिंग मशीन। नाउ डी पार्ट, हाउ मैनी मोर म्यूजिक सिस्टम्स वर सोल्ड देन टोस्टर? टोस्टर में कितने सेल हुए हैं आपके? 20, और म्यूजिक सिस्टम कितने सोल्ड हुए हैं आपके? दैट इज 30, तो कितना? 20 एंड 30, 30 माइनस 20 इज 10। Now next is drawing a bar graph. First, all bars are of the same width and are evenly spaced. Label what each bar represents. Length of the bar equals the number of data items. Now advantages of bar graph. First, bar graph are easy to draw, read and understand. Next, comparison is easier with a bar graph. Now practice time 16.2, question number 1. यूज द बार ग्राफ गिवन बिलो टू आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स टेस्ट स्कोर हैं, स्टूडेंट्स के हैं प्रिया, शिखा, रेखा, तनु एंड शिवानी, और नीचे गिवन है उनके मार्क्स। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। यस, फर्स्ट ए पार्ट है, हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द टेस्ट? किसने टेस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं? तो किसने सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा ग्राफ किसका है आपका? यहाँ पे शिखा का, तो आंसर इज शिखा। तो ए का आंसर है आपका शिखा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी इज, हु स्कोर्ड द लोएस्ट मार्क्स इन द टेस्ट? किसने सबसे कम मार्क्स स्कोर किए? तो सबसे कम किसने किए? सबसे छोटा ग्राफ है आपका तनु का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तनु बी पार्ट में। मार्क्स भी लिख देते हैं यहाँ पे हम, कितने हैं मार्क्स? शिखा के कितने मार्क्स हैं? 100, और तनु के कितने हैं? 65, 100 एंड ये 65। नाउ नेक्स्ट सी, डिड एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑब्टेन द सेम स्कोर? हु वर दे? सेम स्कोर, तो दो ग्राफ कौन से इक्वल हैं आपके? यस, प्रिया एंड शिवानी, और दोनों ने 80 मार्क्स किए हैं, प्रिया एंड शिवानी। तो इसका आंसर रहेगा प्रिया एंड शिवानी। तो दोनों के मार्क्स कितने हैं? 80। नेक्स्ट डी, व्हाट स्कोर इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच स्क्वायर? ईच स्क्वायर कितने मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे देखो 0 से लेके 10, दैट मीन्स एक स्क्वायर कितने मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 मार्क्स। कंप्लीट द टेबल। टेबल आदि तो हमने कंप्लीट कर दिया है, बस हमें किसके मार्क्स चढ़ाने हैं? रेखा के। तो रेखा के मार्क्स कितने हैं? रेखा के मार्क्स हैं 90, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 90।
तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्रैक द कोड। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ पिज्जाज सोल्ड बाय पिज्जा शॉप इन 1 वीक। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और की क्या गिवन है कि एक पिज्जा रिप्रेजेंट्स 10 पिज्जाज। यूजिंग द पिक्टोग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पिज्जाज सोल्ड एंड हाउ मैनी। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा संडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 जा 80। तो फर्स्ट का आंसर है संडे और कितने पिज्जाज 80। नाउ बी, ऑन विच डे वर 70 पिज्जाज सोल्ड। किस दिन 70 पिज्जा सोल्ड हुए थे। देखो 7 का काउंट कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7। यस, इट्स ऑन सैटरडे। नाउ सी पार्ट, हाउ मेनी पिज्जाज वर सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को कितने हुए, 1 2 3 4 5 5 मीन्स 50। नेक्स्ट, हाउ डिड यू फाइंड द नंबर ऑफ पिज्जाज सोल्ड ऑन ईच डे। कैसे करेंगे हम, काउंट द पिक्चर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 10। तो क्या आंसर रहेगा, काउंट द पिज्जाज एंड मल्टीप्लाई बाय 10। तो हाउ डिड यू फाइंड द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड ऑन ईच डे। कैसे करेंगे, पिज्जाज के पिक्चर को काउंट करेंगे और एक पिक्चर 10 पिज्जाज को रिप्रेजेंट करती है तो 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मेंटल मैथ्स। The given graph shows supplies needed for a project. The marbles are divided equally among 4 students. How many marbles which each students get? हर एक बच्चे को कितने मार्बल्स मिले। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ द आइटम्स एंड आइटम्स, बटन्स, ग्लू स्टिक्स एंड मार्बल्स। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बार ग्राफ आप देखेंगे कि किस बच्चे को कितने मार्बल्स मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज हॉट्स। The bar graph shows the saving of 5 children. Reena needs to save another rupees dash so that she has twice as much money as Keshav. केशव के पास कितनी मनी सेव्ड है, 200 रुपीज़। तो रीना के पास कितना है, रीना के पास है आपकी 350। तो इसने कहा था बार ग्राफ शोज द सेविंग ऑफ 5 चिल्ड्रन। रीना नीड्स टू सेव अनदर रुपीज दिस सो दैट शी हैज़ ट्वाइस एज मच मनी एज केशव। केशव के पास 200 है और उसका डबल कितना हो जाएगा, 200 का डबल हो जाएगा 400। और रीना के पास कितना है 350, तो उसे ₹50 और सेव करने पड़ेंगे किसके, केशव से डबल सेविंग के लिए। नाउ नेक्स्ट मैथ लैब एक्टिविटी। फिल द टेबल आफ्टर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर स्कूल। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको वो कलेक्ट करनी है और नंबर्स को यहाँ पे फिल करना है। क्लासरूम्स कितने हैं, नॉन क्लासरूम्स कितने हैं, टीचिंग स्टाफ कितना है, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, स्कूल बसेस कितने हैं। नाउ रिप्रेजेंट योर डाटा एज अ बार ग्राफ, चूज अ सुटेबल स्केल इफ रिक्वायर्ड। तो इस तरह से आप ये सारा डाटा कलेक्ट करेंगे और इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसका रिविजन आप खुद कीजिए।